Welcome in this worship service. Today is 14th Sunday after Pentecost. The theme is God provides food for the hungry. परमेश्वर जो लोग खाने के ज़रूरत में रहते हैं उनको भोजन प्रदान करता है. Oh, that man would therefore praise the Lord for his goodness, for he satisfies the thirsty soul and filleth the hungry soul with good. Let us sing a song for the glory of God. आइए हम परमेश्वर की स्तुति में मिलकर गीत गाएंगे. आज का दिन यहोवा
Now we use the Lord's Supper book, page number 3, section 3, 4, and 5. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of the Holy Spirit, that He may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God and Father. Amen. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Almighty Father, in your goodness you have provided abundantly for the needs of all mankind. Teach us all to share your gifts aright, that the poor of the earth may no more faint for hunger, but they may have food to eat and praise your name, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. आमीन. आइए हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 41वां अध्याय और उसके 49 पद से. बुक ऑफ जेनेसिस chapter 41, beginning from 49th verse. सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुताव से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई. अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीफेरा की बेटी असानत से जन्मे, और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझे सारा क्लेश और मेरे पिता का घराना भुला दिया है. और दूसरे का नाम उसने यह कहकर रखा अप्रेम, कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है. और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7वें वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया, और सब देशों में अकाल पड़ने लगा. परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था. जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वे सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो. सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश के काल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा. सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र से अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था. ये परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर उसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए हम
सुसमाचार में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 13वें पद से। Gospel according to Saint Matthew, 14th chapter, beginning from 13th verse. Jesus feeds a great crowd with the 5 loaves and 2 fishes. When Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a lonely place apart. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. As he went ashore, he saw a great throng, and he had compassion on them, and healed their sick. When it was in the evening, the disciples came to him and said, "This is a lonely place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages to buy food for themselves." Jesus said, "They need not to go away. You give them something to eat." They said to him, "We have only 5 loaves here and 2 fish." And he said, "Bring them here to me." Then he ordered the crowd to sit down on the grass, and taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed. And he broke, and he gave the loaves to disciples. And the disciples gave to the crowds. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces left over. And those who ate were about 5,000 men, beside women and children. This is the gospel of Christ. आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 14वां रविवार है, और आज के थीम के लिए, विषय के लिए हमको बताया गया है कि परमेश्वर भूखों को भोजन प्रदान करता है। भोजन एक शरीर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, और इस भोजन से हमें मस्तिष्क की मांसपेशियां, हमारी स्किन, ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम में सब तरफ से हमको जो है पौष्टिक तत्व प्रदान किए जाते हैं। और भोजन हमको जो है सामर्थ्य प्रदान करता है, ताकत देता है, और इसीलिए खाना जो है, भोजन जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है सारे मनुष्यों की, सब संसार के अंदर। हंगर क्राइसिस हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है, जिसमें न्यूट्रिशियस फूड की हमेशा कमी बताई जाती है। एक शरीर को जितने खाने के अंदर कैलोरीज की आवश्यकता होती है, उतनी उनको मिल नहीं पाती है। एक सर्वे के अनुसार करीब 29% आबादी जो है वो बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे हमको मिलती है। इसका मतलब है कि जो मिनिमम कैलोरीज 1200 की जो आवश्यकता एक अडल्ट को होती है रोज़ाना के लिए, वो उनको पूरी नहीं मिल पाती। और ये जो है एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, सारे संसार की प्रॉब्लम जो है ये हमारे बीच में है। लेकिन भोजन को मसीह विश्वास के अंदर एक ख़ास रोल दिया गया है। मसीह समाज के अंदर प्रत्येक मील से पहले, भोजन करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देने का एक रस्म हमको दी गई है, जिसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं भोजन के लिए। बाइबल में जब हम क्रिएशन के ज़िक्र को देखते हैं तो वहाँ भी हमको जो है पता चलता है कि जितने फलदायी वृक्ष परमेश्वर ने बनाए हैं, वहाँ परमेश्वर ने यूँ कहा कि मैं ये सब तुमको देता हूँ,
और ये तुम्हारे भोजन के लिए है। परमेश्वर ने जो है उस भोजन की आवश्यकता को आरंभ ही से रखा है और उस ध्यान में रखते हुए उसको जो है एक समाधान भी निकाला है। पुराने नियम के अंदर ही जब हम इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जब इस्राएली कनान देश के लिए निकलते हैं तो निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय के अंदर 37 पद हमको यूँ पढ़ने को मिलता है, 6 लाख पुरुष वहाँ से निकले थे जिनमें बच्चों की और महिलाओं की गिनती नहीं थी, और परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मन्ना का इंतज़ाम किया, और मन्ना जो है वो आसमान से बरसाया जाता था, और करीब 40 वर्ष तक इस्राएली लोग उस मन्ना को खाते रहे। एक बड़ा अजीब इंतज़ाम परमेश्वर ने भोजन का इस्राएली लोगों के लिए किया। आज के टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसके अंदर भी हमको जो है फीडिंग द 5000 पीपल का एक जो है हमको एक उदाहरण मिलता है, और उसके अंदर जो है सब गॉस्पल सारे सुसमाचार इस उदाहरण को जो है बताते हैं। और इसमें जो है बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एकांत जगह में जा रहे थे, क्योंकि उनको ये समाचार दिया गया था कि चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यूहन्ना का सर कटवा दिया है, और यूहन्ना के चेलों ने उसकी लोथ को दफन किया और यीशु को आकर उनको समाचार दिया। When he has come to know this, मेरे ख्याल से बहुत उदास हुए और उन भीड़ को छोड़कर एकांत की जगह में निकल गए। लेकिन लिखा है कि जब यीशु मसीह अलग जा रहे थे तो भीड़ भी इस बात को जानकर उनके पीछे पीछे हो ली, और प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाकर उनको जो है चंगाई देते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। लेकिन जब शाम हुई तो चेलों ने आकर यीशु से कहा कि अब दिन ढल गया है और शाम हो गई है, इनको जाने दे ताकि ये पास के गांव में जाकर भोजन का इंतज़ाम करें। और प्रभु यीशु मसीह बड़ी अच्छी बात उन लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि ये नहीं जाएंगे, बल्कि इनके भोजन का इंतज़ाम तुम ही करो। और वो बड़े कश्मकश में थे। लेकिन फिर उनको जब हम चारों गॉस्पेल में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वहाँ एक छोटा बच्चा था जिसके पास 2 मछली और 5 रोटियां थी, और उसको लाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। और लिखा है वहाँ के करीब 5000 लोग जो केवल पुरुष थे उन्होंने उसको खाया, उसके अलावा स्त्रियां और बच्चे भी थे, और करीब 12 टोकरियां बचे हुए खाने की उन्होंने भर ली जो बच गई थी। ये अकाउंट जो है, ये मिरेकल जो है चारों सुसमाचार के अंदर हमको पढ़ने को मिलता है। ना आज थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि इस मिरेकल से, इस आश्चर्य कर्म से हम लोगों को क्या लेसन या सबक मिलता है। सबसे पहली बात तो हमको जो है पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ और दया है उस पर हमको जो है ध्यान आता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों पर दया करते हैं और सामर्थ्य से उनको जो है भोजन प्रदान करते हैं। तो पहला सबक जो है हमको जब पढ़ते हैं तो मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा तो जीसस हैड कंपैशन ऑन देम। जीसस फीडिंग ऑफ द 5000 रिमाइंड्स of us that he is a compassionate God, and we see that this first part of the passage when we read it कि यीशु मसीह ट्रैवल कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे सेम टाइम के अंदर, लेकिन आखिरी समय में जब उनको खाने की ज़रूरत पड़ी तो खुदावन यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि let the people remain here and instead you give them some food।
उनको यहीं रहने दो और तुम उनके खाने के लिए इंतज़ाम करो। ये चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह की हमको दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों से कितना प्रेम करते थे और उनके ऊपर तरस खाते थे, उन पर दया करते थे, क्योंकि बहुत से लोगों की उन्होंने चंगाई करी है, बहुत से लोगों से बातचीत करी है, लेकिन जो प्रायोरिटी जो उनकी थी वो थी उस भीड़ के लिए जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, और उनके खाने का भी इंतज़ाम उन्होंने किया है। तो ये हमको दिखलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है कितने दयालु और तरस खाने वाले थे। दूसरी बात जो हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है वो है कि जीसस यूजेस अदर पीपल टू ब्लेस अदर्स। प्रभु यीशु मसीह जो है एक दूसरे को ब्लेस करने के लिए, मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द अनदर लेसन वी लर्न फ्रॉम जीसस, फ्रॉम दिस मिरेकल। ही यूजेस द अदर पीपल टू ब्लेस अदर पीपल्स। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, when disciples asked about the food, they found a boy. उनको जो है एक बच्चा मिलता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी, यूहन्ना अच्छी सुसमाचार में जब पढ़ते हैं। And that very moment when Jesus came to know, he decides to use this boys, इस्तेमाल करना मांगता इस बच्चे का, वो प्रेम जो सब लोगों के साथ वो बांटना मांगता था, देना मांगता था। जब उसने अपनी उन रोटी को, जो 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी, ऑफ़र करी है, और एक छोटा बच्चा जो है जिसने सारी भीड़ को भोजन का इंतज़ाम कराया। यहाँ 2 बात हमको देखने को मिलती है कि फर्स्ट, जीसस यूजेस अदर्स इन डिसाइपल्स इन दिस केस to be his hand in providing the blessings to others, and he asked them to find food which they did. उनको मिला उस छोटे बच्चे के पास। And the second one is that Jesus uses children to help others. बच्चों को भी जो है दूसरों की मदद करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी अमेजिंग बात इस बच्चे की रही है कि उसने उसको छिपाया नहीं, उसने उसको जो है अपने लिए रखा नहीं, बल्कि जब उसको ज़रूरत का पता चला तो उसने आगे होके उनकी मदद करने की कोशिश की। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है कि देन जीसस टुक द लोव्स एंड गेव थैंक्स। परमेश्वर का धन्यवाद दिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज हु वर सीटेड एज मच एज दे कैन ईट। जो बैठे थे उनको जितना भोजन चाहिए था उनको जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और फिर वहाँ लिखा है कि उन्होंने 12 टोकरे भरकर वो टुकड़े जो बच गए थे उनको उठाया ताकि वो वेस्ट ना जाए। प्रभु यीशु मसीह इन चेलों के साथ उस बच्चे को भी दूसरों की आशीष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इट रिमाइंड्स अस दैट गॉड यूजेस अदर्स टू ब्लेस अदर पीपल ऑल्सो। दूसरों को भी इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर मदद करता है जब हमारी ज़रूरत होती है, और उस ज़रूरत के अंदर वो दूसरों को सामने लेकर आता है ताकि विश्वास हमारा और मजबूत हो सके। Now the third thing we see today in this miracle, Jesus is big enough for any expectation. जो हमारी अपेक्षा है, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी आशा है, उससे कहीं बढ़कर है। हम जो है जितना उम्मीद रखते हैं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उससे कहीं ज़्यादा है। उसने जो है सरपास किया हमारे एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि ही इज़ द अल्टीमेट, क्योंकि वही जो है वो सब कुछ है। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के उसके पहले अध्याय के 3 पद में लिखा गया है कि ऑल थिंग्स केम इनटू बीइंग थ्रू हिम। सब चीज़ें जो है उसके द्वार से बनाई गई। एंड
apart from him nothing came into being that has come into being. उसके अलावा जो है कुछ भी अस्तित्व के अंदर नहीं आया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। और 5,000 लोगों को खिलाना जो है, ये हमको जो है प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य को बतलाता है कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन से, हमारी अपेक्षा से कहीं बढ़कर है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है इन 5,000 ही नहीं बल्कि 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया, क्योंकि वहाँ लिखा है कि 5,000 तो सिर्फ पुरुष थे, उसके अलावा महिलाएं भी थी, उसके अलावा बच्चे भी थे। उस छोटे बच्चे ने जिसने 5 रोटी और 2 मछलियाँ दी, उसके साथ के और दोस्त होंगे, कितने ही होंगे। तो हमें जो है इसका पूरा यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़कर है, हमारी उम्मीद से कहीं बढ़कर है। कभी सोच नहीं सकता होगा वो बच्चा कि मेरे 5 रोटी से 5,000 से ज़्यादा लोग खाना खा पाएंगे, लेकिन ये संभव हो पाया। Now the last thing, इसके अंदर हमको यूँ सीखने को मिलता है कि nothing we face here on earth is too big for God. कोई भी चीज़ जो हम इस दुनिया के अंदर सामना करते हैं वो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा है। और हम इस सबक को सीखते हैं, और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 25 से 27वीं आयत के अंदर हमको बताया गया है कि डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट योर लाइफ, अपने जीवन की चिंता मत करो कि व्हाट यू विल ईट और व्हाट यू विल ड्रिंक और व्हाट यू विल योर बॉडी और यू विल पुट ऑन। आप जो है क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या वस्त्र पहनोगे, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर, जो हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं उनकी ओर देखो कि वे न वो बोते हैं, न वो काटते हैं, न वो जमा करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको जो है भोजन वक्त पर देता है। तो क्या हम जो है मनुष्य होने के नाते उन पक्षियों से भी बढ़कर नहीं है? तो यहाँ पर जो है हमको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो है परमेश्वर के सामने असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और 5,000 लोगों का खिलाया जाना एक हमको रिमाइंडर मिलता है, फिर से एक हमको एक सबक मिलता है फिर से, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दयावान है। प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीद से, अपेक्षा से कहीं बड़ा है। और कोई भी चीज़ जो है परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी नहीं है, असंभव नहीं है। वो सब चीज़ों में संभव कर सकता है। आज हमने जो है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी पढ़ा था कि किस तरह से यूसुफ जो है वो अकाल के समय के अंदर, जब वहाँ पर फेमिन था, उसने अपने आप को तैयार किया और न केवल वहाँ के लोगों को बल्कि सारे मिस्र के लोगों को उसने जो भोजन सप्लाई किया। और ये परमेश्वर की एक योजना है जो परमेश्वर हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार करता है। और इसलिए हम अपने जीवन के अंदर हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और परमेश्वर पर हमको भरोसा रखने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को हमसे अधिक जानता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए इस समय हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और हम सब मिलकर इस समय नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। पेज नंबर 7 सेक्शन 14 में नीकिया का अकीदा। हम एक खुदा कादिर मतलब बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी।
वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुव्वत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नबिश्तों के मुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आज की इस इबादत के अंदर सबका स्वागत है। ट्रैफिक की वजह से हम लोगों ने ये सोचते हुए कि बड़ा अनसर्टेन जो है वो समय रहेगा, हमने आज की इबादत को कैंसिल किया है काफ़ी कंसल्टेशन के बाद और सोच विचार करने के बाद। और इसी तरह से जो हमारा आज बच्चों का कंफर्मेशन होना था, उसको भी हमने फ्रेश डेट के लिए पोस्टपोन किया है। आने वाले समय में आपको जो है डेट बताई जाएगी। संडे स्कूल के बच्चों के लिए फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 17 सितंबर से हमारे टीचर्स क्रिसमस प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, और संडे स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो है नाम लिखाना शुरू करें और आना शुरू करें, ताकि उनका नाम जो है क्रिसमस प्रोग्राम के अंदर ऐड किया जा सके। लास्ट मोमेंट में जब आकर आप लोग कहते हो कि हमारे बच्चे को रखो, तो काफ़ी परेशानी हमारे टीचर्स को होती है। लेकिन अभी से आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि बच्चों को संडे स्कूल लाना शुरू करें। बुधवार को शाम को 4 बजे हमारी प्रार्थना होती है। हम सभी उसके अंदर आने की कोशिश करें। और हमने एक महिलाओं के लिए रिट्रीट का आयोजन किया है, जो कि 30 सितंबर को सवेरे 9 बजे से शुरू होगी। आप सबों को उसकी सूचना दी जाती है। कुछ हमारे कलीसिया के बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जिन्होंने शादी की सालगिरह या जन्मदिन मनाया है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे सेंट थॉमस कलीसिया के लिए। परमेश्वर हम सब लोगों पर अपना आशीष का हाथ बढ़ा, जिससे परमेश्वर हम अपना भरोसा तुझ पर रख सकें। ख़ास कर उन तमाम बीमारों को याद करते हैं परमेश्वर, जो हमारे कलीसिया में हैं। मिस्टर एरिक पॉल के लिए, मिसेस और मिस्टर टीजे एमोस के लिए, मिसेस जी दास के लिए, मिसेस मीना शर्मा के लिए, मिसेस अमृता डेनिसन के लिए, मिसेस एस रॉबिन्सन के लिए, मिस्टर वी के दास के लिए, मिस्टर अरुण ब्राइट के लिए, मिसेस रोज़ी मेरी के लिए, मिस्टर इमैनुअल बरकत मसीह के लिए, और मिसेस सरोज गजन के लिए। हम जानते हैं परमेश्वर के सब लोग तुझ पर भरोसा लगाए हुए हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि उन पर अपनी आशीष का हाथ बढ़ा, उनको चंगाई दे परमेश्वर, ताकि एक बार फिर वो अपने बिस्तर से खड़े हो सकें और तेरे इस पवित्र भवन में आ सकें और तेरे नाम की तारीफ़ और हम कर सकें। हमारी विनती है परमेश्वर कि तू उन सब पर अपना रहम का हाथ बढ़ा। जो इलाज किया जाता है उस पर भी अपने आशीष का हाथ रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए समय हम सिफारशी दुआओं के अंदर जाएंगे और सब मिलकर सिफारशी दुआएं करेंगे।
आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हम उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, उन तमाम बातों को दूर करने के लिए जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करते हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख और तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर, मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत के लिए, ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों के लिए और रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड विजय के नायक, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड ए धर्मराज, माथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर ओडिसिस मार्थोमा, और हमारे बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि हम तेरे उन लोगों के साथ जिन्होंने वफ़ादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी की खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हम जो तेरे बेटे अपने खुदावन मुंजी यीशु मसीह के वसीले से ये पेश करते हैं। आमीन। आइए हम सब इस समय अपने गुनाह का इकरार करेंगे। सेक्शन 19 सब मिलकर साथ पढ़ेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से तेरे और अपने साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। हम इन सब के लिए निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसकी खातिर से जो कुछ हमसे हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन।
तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हमको मुस्तको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदा का इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे। आइए समय हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के समय में हमारा दान भी स्वीकार किया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम बरकतों के लिए जो तूने हमको दी है। तेरी बरकतों में से खुदावन जो कुछ हम तेरे सम्मुख लाए हैं इसको कबूल कर और अपनी महिमा को इस्तेमाल कर। देने वालों को तू और दुगना चौगना दे, ताकि सब परमेश्वर तेरे रहम में अपने दिनों को बसर कर सकें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें अपनी आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक तेरा है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो, उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से। आमीन।